ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 1 ਜੁਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, PCS, PSCB ਕਲਰਕ, SSC ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਸੈਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦ ਹਿੰਦੂ, PIB, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਔਰ ਅਦਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ। ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ PC ਮੈਲੋਨੋਬਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਾਈਕਲ ਮਾਰਟਿਨ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਈਕਲ ਮਾਰਟਿਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ੈਲ ਮਾਰਟਿਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਬਲਿਨ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲਦੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਡਬਲਿਨ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਕਰੰਸੀ ਇੱਥੇ ਯੂਰੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੋਲ ਕੰਡਕਟਡ ਬਾਈ ਵਿਜ਼ਡਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਡ੍ਰੈਵਿਡ ਬਣੇ ਨੇ ਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ 50 ਈਅਰਸ ਇਨ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਡ੍ਰੈਵਿਡ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇਗੀ ਵਿਜ਼ਡਨ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ USA ਦੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਸਾ। USA ਦੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ USA ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਮੈਰੀ W ਜੈਕਸਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਰੀ W ਜੈਕਸਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਮ ਬ੍ਰਾਈਟਸਟੀਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਮ ਬ੍ਰਾਈਟਸਟੀਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੀਮੇਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਫੀਮੇਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਣ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੇ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਰਕ ਡਿਊਰਿੰਗ COVID-19 ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਬਾਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਔਨ UN ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਡੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੇ ਸ਼ੈਲਜਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ COVID-19 ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੀਮਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? MP ਦੁਆਰਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ। ਫॉर द ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਲੇਬਰਰ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਦਰਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਗਿਆ ਐਟ ਵਨ ਕਲਿੱਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬੇਸਿਕਲੀ 1369 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ MSME ਔਰ ਅਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ 1369 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਗਿਆ ਐਟ ਵਨ ਕਲਿੱਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ। डिप्टी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन ने?
रतन लाल कटारिया बेसिकली अगर आप सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की गल करिए तो यह थनवर चंद गहलोत लवे है। थनवर चंद गहलोत लवे है और वह राज्य सभा MP ने मध्य प्रदेश तो। इन्हों के डिप्टी ने सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के डिप्टी ने रतन लाल कटारिया। इन्हों द्वारा नशा मुक्त भारत एक इनिशिएटिव कह सकते, एक कैंपेन कह सकते हैं, लॉन्च किया गया। किन्ने बेसिकली 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स दे विच ऐसे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए गए जिथे काफ़ी ज़्यादा जी यूथ है और नशे दे विच है। तो इसनूं खत्म करने के लिए 272 ऐसे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए गए और एक कैंपेन लॉन्च किया गया, नशा मुक्त भारत। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। 3 इंपोर्टेंट मिनिस्ट्रियाँ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज। कौन किन्ना लवे है? नरेंद्र सिंह तोमर मोरियाना मध्य प्रदेश तो लोक सभा MP ने। इन्हों द्वारा एक वैब पोर्टल लॉन्च किया गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान का। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वैब पोर्टल किस द्वारा लॉन्च किया गया? नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। लॉ मिनिस्ट्री किन्ना लवे? लॉ मिनिस्ट्री है रविशंकर प्रसाद। इन्होंने अप्रूव किया 65 साल अबव या फिर कोविड-19 पेशेंट या फिर सस्पैक्टेड पेशेंट्स कि यह की करनगे पोस्टल बैलेट द्वारा वोटिंग करनगे। वोटिंग करने के लिए 65 साल तो ज़्यादा के जोड़े लोग ने, यानी कि जो चल फिर नहीं सकने, अगर 65 साल तो ज़्यादा के ने तो काफ़ी हद तक ऐसे लोग होंगे कि उन्होंने ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। इसलिए उन्होंने द्वारा कोविड-19 पेशेंट्स द्वारा और जोड़े सस्पैक्टेड पीपल ने जिन्हों शक है कि यह कोविड-19 के पेशेंट हो सकते हैं, उन्होंने द्वारा पोस्टल बैलेट राही वोटिंग की जाएगी। और इस दे अंडर जोड़ा बिहार ऐसी फर्स्ट स्टेट बनेगी जी विधान सभा इलैक्शनस करवाएगी इस माहौल के कोविड-19 के माहौल के। तो इस पोस्टल बैलेट वाली स्कीम सब तो पहले किहड़ी स्टेट के उत्ते अप्लाई होएगी? बिहार के विधान सभा के इलैक्शनस के विच। नैक्सट है इंडियन नेवी ने की करिया एडवांस्ड टोरपेडो डिकोए सिस्टम। एक एडवांस्ड टोरपेडो डिकोए सिस्टम नूं इंस्टॉल किया। एडवांस्ड टोरपेडो डिकोए सिस्टम, इसका नाम रखा मरीच नाम रखा, जिसनों मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर DRDO द्वारा बनाया गया। मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर DRDO द्वारा बनाया गया। तो हुण इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिता गया है भारत इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नैक्सट है फ्लिपकार्ट के को फाउंडर ने सचिन बंसल फ्लिपकार्ट के को फाउंडर ने। इन्हों द्वारा लॉन्च किया गया नवी एक लैंडिंग एप्लीकेशन लॉन्च की गई, जिसके अंडर 5 लाख रुपए तक का क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा, लोन प्रोवाइड किया जाएगा फास्ट ट्रैक, यानी कि ईजी लोन और जल्दी लोन प्रोवाइड किया जाएगा 5 लाख रुपए तक का नवी लैंडिंग ऐप के उत्ते। ठीक है जी, जिसके अंडर बेसिकली KYC और डिफरेंट डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पएगी, इसलिए ये काम थोड़ा जल्दी कर दिता जाएगा। नैक्सट है आप डिस्कस कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सब तो पहले तेलंगाना के विच कवाल, पखाल, मंजीरा और पोचाराम। कवाल, पखाल, मंजीरा और पोचाराम। कवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पोचाराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। त्रिपुरा की गल करिए गुमती रिवर भी है इत्थे, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काफ़ी इंपोर्टेंट है, त्रिपुरा के विच तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यूपी की गल करिए हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हस्तिनापुर, चंद्रप्रभा, बखीरा, कैमूर और किशनपुर। उत्तराखंड बिनसर, मलन, नंदौड़, मसूरी और केदारनाथ। बिनसर, मलन, नंदौड़, मसूरी और केदारनाथ, ये 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ने उत्तराखंड दे विच। वेस्ट बंगाल रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपोर्टेंट रहेगी, इस दे विच वेस्ट बंगाल दे विच रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेंचल और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कितने है? वेस्ट बंगाल दे विच। इस दे नाल ही अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज खत्म होंदियां ने,
कल तो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं बर्ड सेंचुरीज। बर्ड सेंचुरी आप सारी स्टेट्स की नहीं करांगे, जिथे जिथे कुछ खास इंपोर्टेंट बर्ड सेंचुरीज ने जी अपने एग्जाम ओरीएंटेड बनदियां ने उन्हों के बारे कुछ डिस्कस करांगे। उस तो बाद आप कुछ नवा स्टार्ट करांगे, अगे जाके देखते हैं कि आप की स्टार्ट करने जा रहे हैं। नैक्सट आप चलते हैं अज के क्वेश्चन के वाल। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच डे इज़ ऑबजर्वड एज इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे। इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे, एस्टेरॉयड की होंगे ने? एस्टेरॉयड वो पत्थर होंगे ने, अगर आप कह सकते हैं कुछ वो ऑबजैक्ट्स जोड़े स्पेस तो ग्रैविटेशनल, अगर आप गल करिए अर्थ के ग्रैविटेशनल पुल के नाल खिंचे चले आते हैं और अर्थ के उत्ते लैंड करते हैं, उन्होंने ऑबजैक्ट्स को एस्टेरॉयड कहा जाता है। तो इस दिन को अवेयर करने के लिए, लोगों को एस्टेरॉयड के बारे अवेयर करने के लिए 30 जून को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे ऑबजर्व किया जाता है। इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे ऑबजर्व किया जाता है। बेसिकली 2015 के इसनों ऑबजर्व किया गया सी, पहली बार 2015 के ऑबजर्व किया गया सी, ते उस तो बाद इसनों ऑबजर्व किया जान लग्या हर साल। 25 जून की गल करते हैं। 25 जून को किहड़ा डे ऑबजर्व किया गया? 25 जून को आप डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जिसका हैडकुआटर लंडन यूके दे विच है, इसने डे ऑफ सी फेरर्स ऑबजर्व किया 25 जून को। 26 जून को आप डे डिस्कस किया ड्रग एब्यूज़, जिस दे रिलेटेड हुणे आप एक न्यूज़ डिस्कस की नशा मुक्त अभियान, नशा मुक्त भारत अभियान। ड्रग एब्यूज़ 26 जून को ही उसनों शुरुआत की गई सी। 27 जून इंटरनेशनल MSME डे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज रिलेटेड इस दिन को ऑबजर्व किया जाता है 27 जून को। इस तो इलावा नैक्सट आप डिस्कस किया 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे कदों ऑबजर्व किया गया? 29 जून। नैक्सट है हू टुक एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ MP। मध्य प्रदेश की गल करते हैं। मध्य प्रदेश काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के चल रहा है। डिफरेंट स्कीम्स की अगर आप गल करिए, काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स लॉन्च की गई। दीदी व्हीकल स्कीम, चरण पादुका कैंपेन लॉन्च किया गया, जीवन शक्ति प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इस तो इलावा अगर आप गल करिए FIR आपके द्वार योजना, ठीक है जी, काफ़ी इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं MP गवर्नमेंट द्वारा। दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स नूं कोरोना वॉरियर्स का स्टेटस दिता गया सी। सारी स्कीम्स MP द्वारा। शिवराज सिंह चौहान इत्थे दे चीफ मिनिस्टर ने। और गवर्नर इत्थे दे हुंदे सी लालजी टंडन। गवर्नर कौन होंगे सी? MP दे लालजी टंडन। इस टाइम लालजी टंडन जी की थोड़ी तबीयत खराब है, इस करके आनंदीबेन पटेल जो कि यूपी दे गवर्नर ने इन्हों एडिशनल चार्ज दिता गया MP का। एडिशनल चार्ज दिता गया MP का, ठीक है जी। कित्थे दे गवर्नर ने भी याद रखने ने? यूपी दे। बेबी रानी मौर्या उत्तराखंड, बेबी रानी मौर्या कित्थे दे गवर्नर ने? बेबी रानी मौर्या त्रिवेंद्र सिंह रावत, हाँ जी, उत्तराखंड के गवर्नर ने बेबी रानी मौर्या। फागू चौहान ने बिहार के गवर्नर ने फागू चौहान। बंडादारू दत्ताचार्य हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ने बंडादारू दत्ताचार्य, ठीक है जी, ये याद रखने ने। इस तो इलावा इन्होंने अगर चीफ मिनिस्टर की गल करिए तो यूपी के योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत, बिहार के नीतीश कुमार और हिमाचल प्रदेश की गल करिए जयराम ठाकुर। नेक्स्ट है विच स्टेट विल लॉन्च अ कैंपेन किल कोरोना। एक कैंपेन लॉन्च किया गया MP की, हुणे आप गल करके हटे MP द्वारा ही इस कैंपेन को लॉन्च किया गया। बेसिकली इस कैंपेन के अंडर की किया जाएगा कि MP के जिन्ने भी लोग ने, जिन्ने भी पीपल MP के रह रहे हैं, उन्होंने सारिਆਂ की स्क्रीनिंग की जाएगी। नो मैटर कि वो सस्पैक्टेड पेशेंट है या फिर नहीं है, तो हर एक परसन की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसके अंडर इस कैंपेन को लॉन्च किया गया किल कोरोना। ये याद रखना। इस तो इलावा बाकी स्टेट की गल करते हैं, एक न्यूज़ डिस्कस कर लें। सब तो पहले उत्तराखंड के रिलेटेड। उत्तराखंड के विच लीचन पार्क बनाया जाएगा। लीचन एक तरीके की पैरासाइट वर्गी एक चीज़ है, इसके लिए
एक पार्क बनाया जाएगा लीचन पार्क उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट दे विच। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट दे विच लीचन पार्क बनाया जाएगा। ठीक है जी, ये याद रखने कित्थे बनाया जाएगा, उत्तराखंड दे विच। इस तो इलावा अगर आप गल करिए उत्तराखंड की कैपिटल गार्स एंड समर कैपिटल अनाउंस की गई सी। यूपी की गल करिए 800 किलोमीटर की हर्बल रोड अनाउंस कीतियां सीगियां। काओ स्लोटर एक्ट नूं अमेंड किया गया सी उत्तर प्रदेश द्वारा। अच्छा, काओ के रिलेटेड एक स्कीम लॉन्च की गई सी, उस स्कीम नूं किहड़ी स्टेट ने लॉन्च किया सी, छत्तीसगढ़ ने। गोधन स्कीम कुछ लॉन्च की गई सी, किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की गई सी, इसनूं छत्तीसगढ़ द्वारा। झारखंड द्वारा स्कीम लॉन्च की गई श्रमिक, बिल्कुल रिसेंटली एक स्कीम जी लॉन्च की गई है झारखंड द्वारा, उसका नाम है श्रमिक। शहरी रोज़गार मंजूरी फॉर कामगार। गुजरात की गल करिए चीफ मिनिस्टर इत्थे दे विजय रूपानी इत्थे दे चीफ मिनिस्टर ने। इस तो इलावा आचार्य देवव्रत इत्थे दे गवर्नर ने। गांधीनगर गुजरात के गांधीनगर बारे डिस्कस कर लेने। COP 13 कॉन्फ्रेंस इत्थे हैल्ड की गई सी। वहीली डिक्री योजना गुजरात के गांधीनगर की योजना है, गुजरात की योजना है वहीली डिक्री योजना। नैक्सट है विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ 500 मिलियन का लोन किहड़े बैंक द्वारा दिता गया। 500 मिलियन किहड़े बैंक द्वारा दिता गया फॉर स्ट्रैंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर द स्टेट्स प्रोग्राम। एक प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है स्टार्स प्रोग्राम, जिसकी फुल फॉर्म है स्ट्रैंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। स्ट्रैंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट फॉर द बैटर एजुकेशन इन इंडिया। 6 स्टेट्स के विच इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, केरला, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। इन्हां 6 स्टेट्स के विच इस प्रोग्राम के लिए $500 मिलियन अप्रूव किए गए वर्ल्ड बैंक द्वारा। किहड़े बैंक द्वारा अप्रूव किए गए ये? वर्ल्ड बैंक द्वारा। वर्ल्ड बैंक द्वारा 500 मिलियन ये अप्रूव किए गए। इस तो इलावा 400 मिलियन होर अप्रूव किए हैं। 400 मिलियन $US इन्होंने गंगा के लिए, गंगा रिवर की रेजुविनेशन, अगर आप कह सकते हैं सफाई के लिए, रेजुविनेशन के लिए सफाई के लिए गंगा रिवर की 400 मिलियन अप्रूव किए हैं वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, यानी कि टोटल अमाउंट कितनी होगी 900 बिलियन। 2 अलग अलग कह सकते हैं MOU कह सकते हैं, एग्रीमेंट्स कह सकते हैं किए गए। 500 मिलियन का प्रोग्राम के लिए 6 स्टेट्स के विच और 400 मिलियन गंगा के लिए, 400 मिलियन गंगा के लिए। वर्ल्ड बैंक की गल करिए, वर्ल्ड बैंक के विच 189 मैंबर कंट्रीज़ ने। वाशिंगटन DC के विच हैडकुआटर है और डेविड मलपास इस दे हैड ने। IMF के विच भी 189 मैंबर कंट्रीज़ ने। वाशिंगटन DC के विच ही हैडकुआटर है और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इस दे हैड ने। ADB के विच 68 मैंबर कंट्रीज़ ने। मनीला फिलीपीनस के विच हैडकुआटर है और मसत्सुगु आसाकावा इस दे हैड ने। मनीला फिलीपीनस तो याद आया एक अवार्ड सीगा रमन मैगेसे अवार्ड जो कि मनीला फिलीपीनस द्वारा ही दिता जाता है। इसनूं रिसेंटली कोविड-19 के कारण कैंसल किया गया। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, बेसिकली इसनूं ब्रिक्स कंट्रीज़ द्वारा बनाया गया सी, यानी कि 5 मैंबर कंट्रीज़ ने ब्रिक्स दियाँ। इसका हैडकुआटर शंघाई चाइना दे विच है। इसके हैड ने KV कमात। इस महीने तक इसके हैड ने KV कमात। इस तो इलावा इसके बैंक के हैड चेंज किए गए हैं। इस बैंक के हैड नवे अपॉइंट किए जाएंगे। नवे ब्राज़ील तो होंगे मार्कस त्रियोजो। ECB यूरोपियन सेंट्रल बैंक 78 मैंबर कंट्रीज़ ने। इस तो इलावा फ्रैंकफुर्ट जर्मनी के हैडकुआटर है और ECB के हैड ने क्रिस्टलिना लगार्डे। नेक्स्ट है रमेश पोखरियाल निशांक, एजुकेशन मिनिस्ट्री इन्हों लवे रमेश पोखरियाल निशांक यानी कि HRD मिनिस्ट्री है। हरिद्वार उत्तराखंड तो लोक सभा MP ने। इन्होंने इंडिया नूं रिप्रजेंट किया G20 ग्रुप की गल करते हैं। G20 एक्सट्रा ऑर्डीनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीट दे विच। G20 एक्सट्रा ऑर्डीनरी वर्चुअल एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग दे विच किसने पार्टिसिपेट किया? इंडिया वालों रमेश पोखरियाल निशांक। इस मीटिंग नूं किहड़ी कंट्री द्वारा हैड किया गया? किहड़ी कंट्री द्वारा इस मीटिंग नूं हैड किया गया? इस मीटिंग नूं हैड किया गया
ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ G20 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2021 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ G20 ਦੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਲਵੇ ਹੈ ਔਰ 2022 ਦੀ G20 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਵੇ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 2023 ਤੱਕ ਰਸ਼ੀਆ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਵੋਕ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸਪੇਸ ਵੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੇਸ ਵੋਕ ਕਰਵਾਏਗਾ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ 2023 ਤੋਂ ਇਹ ਟੂਰਿਸਟ ਵੋਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ ਐਸੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੋਕਟਸ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰੋਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਐਸੀ ਫਸਟ ਕੰਟਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਾਈਮਜ਼ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦ ਯੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਇਸਦੀ ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਯੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਟੌਪ 100 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਟੌਪ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੀ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼? ਬੋਥ 1 ਐਂਡ 2। ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਬੋਥ 1 ਐਂਡ 2। IIT ਰੋਪੜ ਔਰ IIT ਇੰਦੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। IIT ਰੋਪੜ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 62 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਔਰ IIT ਇੰਦੌਰ 64 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੀ ਟੌਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। IIT ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਚਿਲਕਾ ਲੇਕ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਚਿਲਕਾ ਲੇਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਲਕਾ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਐਰੋਵੈਡੀ ਡੋਲਫਿਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਐਰੋਵੈਡੀ ਡੋਲਫਿਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, 3 ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ IIT ਮਦਰਾਸ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਚਿਲਕਾ ਲੇਕ ਦੀ ਐਰੋਵੈਡੀ ਡੋਲਫਿਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਚਿਲਕਾ ਲੇਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੋਨਪੇ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ? ਫॉर UPI ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਮਾਡਲ। UPI ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨਪੇ ਦੁਆਰਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ICICI ਬੈਂਕ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ। ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਰ ਫੋਨਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ICICI ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੇਮ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ UPI ਮਲਟੀ ਬੈਂਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨਪੇ ਨੇ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ICICI ਬੈਂਕ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ICICI ਬੈਂਕ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਡਿਸ਼ TV ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਕ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮਥਿੰਗ 24% SBI ਦੇ CEO ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ICICI ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। HDFC ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਮ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇਂਗੇ। ਪ੍ਰਸੂਨ ਜੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਰਿਕਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। AR ਰਹਿਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ HDFC ਬੈਂਕ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਸਟਾ ਫਲੈਕਸੀ ਕੈਸ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ HDFC ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ। ਇੰਸਟਾ ਫਲੈਕਸੀ ਕੈਸ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ICICI ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ। HDFC ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰ ਟ੍ਰੀਟਸ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
समर ट्रीट्स कैंपेन लॉन्च किया गया। एग्जिम बैंक की गल करिए, एग्जिम बैंक ने रिसेंटली 2 कंट्रीज़ नूं लोन प्रोवाइड किया। दोनों कंट्रीज़ का, एक कंट्री का नाम है मलावी, दूसरी कंट्री है निकारागुआ। ये दोनों याद रखने ने। बेसिकली अगर आप गल करिए अमाउंट की, तो इत्थे 215 मिलियन समथिंग सीगा और इत्थे 20.10 मिलियन समथिंग सीगा। ठीक है जी, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, हु विल रिसीव ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एट दैट वर्चुअल 20th एडिशन ऑफ बेट अवार्ड्स 2020। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 2020 का जिहड़ा बेट अवार्ड है, इसका 20th एडिशन है, वर्चुअल तौर पर इसनों हेल्ड किया गया। इस दे विच ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसनों दिता गया? बियोंसे नूं दिता गया। ये की ने, एक पॉप स्टार ने, वूमेन ने, पॉप स्टार ने, और इन्हों काफ़ी इंपोर्टेंट है इन्हों का नाम। क्यों? क्योंकि इन्होंने 24 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। ग्रैमी जो म्यूजिक इंडस्ट्री का अगर आप गल करिए हाईएस्ट अवार्ड है म्यूजिक दे विच, तो इन्हों 24 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है बियोंसे। इन्हों ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड के लिए सिलैक्ट किया गया। किसका ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? बेट का। बेट की है? बेट है ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविजन। ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविजन एक अवार्ड है जिसनों स्टार्ट किया गया सी 2001 दे विच। अमेरिकन अवार्ड है। यह अवार्ड दिता जाता है अफ्रीकन अमेरिकनस नूं या फिर कोई माइनॉरिटी क्लासिस जिहड़ी कि अमेरिका दे विच रहिंदियां ने, उन्हां नूं यह अवार्ड दिता जाता है और 2001 दे विच इसनूं स्टार्ट किया गया सी। इस तो इलावा प्रियंका चोपड़ा नूं यूनीसेफ द्वारा डैनी हेई ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिता गया सी। दिया मिर्जा UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम दे विच एंबेसडर अपॉइंट किया गया इन्हों 2022 तक। क्वेरिशा अबुल करीम इन्हों एक अवार्ड दिता गया सी क्रिस्टोफे मैरियक्स प्राइज़। क्रिशा अब्दुल करीम इन्हों क्रिस्टोफे मैरियक्स प्राइज़ के लिए सिलैक्ट किया गया सी। शोभा शेखर नूं ऑस्ट्रेलिया का एक अवार्ड दिता गया सी, मैडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। किसना नूं दिता गया सी? शोभा शेखर नूं। कलाकृति एक बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की सी इन्होंने, म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया दे विच, जिस दे लई इन्हां नूं यह अवार्ड दिता गया। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ साइंड फॉर 6000 मेगावाट जॉइंट वेंचर हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट विद विच कंट्री। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इंडिया ने एक कंट्री के नाल एग्रीमेंट साइन किया कि यह की डेवलप करनगे 600 मेगावाट का एक हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्लांट। ठीक है, हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्लांट लगाएंगे। तो एक हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्लांट किहड़ी कंट्री नाल एग्रीमेंट साइन किया? पहले आप डिस्कस कर लें, भूटान के नाल। हुण ये हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्लांट है तो किसी रिवर के उत्ते लगेगा, तो रिवर का नाम इंपोर्टेंट बन जाएगा अपने लिए। रिवर का नाम की है? खोलोंग चू। थोड़ा ट्रिकी नेम है, खोलोंग चू रिवर के उत्ते इस प्लांट नूं लगाया जाएगा। खोलोंग चू रिवर के उत्ते भूटान के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया, इसनूं लगाया जाएगा। अच्छा, रिसेंटली भूटान के नाल इन्वायरमेंट के रिलेटेड भी एग्रीमेंट साइन किया सी। इंडिया ने इन्वायरमेंट के रिलेटेड भी MOU साइन किया सी भूटान के नाल। एक एग्रीमेंट साइन किया सी बिल्कुल रिसेंटली पावर सैक्टर के लिए डेनमार्क के नाल। ठीक है जी, क्वेश्चन के आंसर देना लॉजिस्टिक्स के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया सी। टोटल 9 एग्रीमेंट साइन किए गए सी, जिन्होंने विच काफ़ी इंपोर्टेंट सीगा लॉजिस्टिक्स। यह किहड़ी कंट्री के नाल किया सी? अफगानिस्तान के लिए एग्रीमेंट साइन किया सी कि इन्हों वीट प्रोवाइड करेगा इंडिया, वीट प्रोवाइड करेगा अफगानिस्तान को। अच्छा, यह एग्रीमेंट 2 कंट्रीज़ के नाल साइन किया गया सी, एक अफगानिस्तान और दूसरी किहड़ी सी, उसका नाम कमेंट बॉक्स के दसना। अज के 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों का नाम, दोनों के आंसर देने ने। इस तो इलावा अगर आप गल करिए श्रीलंका की गल कर लें। श्रीलंका के अगर आप प्राइम मिनिस्टर की गल करते हैं, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर और प्रेजिडेंट, इन्हों का नाम कमेंट बॉक्स के दसना। तीसरा क्वेश्चन अज का, बांग्लादेश के बारे कुछ खास नहीं है। बांग्लादेश के बारे एक सिंगल न्यूज़ याद रख लें कि
ईडन गार्डन कोलकाता दे विच, ईडन गार्डन कोलकाता दे विच बांग्लादेश दे नाल डे नाइट टेस्ट मैच हैल्ड किया गया सी। ठीक है जी, ये याद रखना। नेपाल के बारे याद रखना है, विजिट टू नेपाल ईयर 2020 कैंपेन, विजिट टू नेपाल ईयर 2020 कैंपेन इत्थे दी प्राइम मिनिस्टर के पी शर्मा ओली ने और इत्थे दी प्रेजिडेंट द्वारा लॉन्च किया गया सीगा। नेपाल दी प्रेजिडेंट द्वारा लॉन्च किया गया सी। नेपाल दी प्रेजिडेंट का नाम दसना। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने, ये नाम याद रखा। नैक्सट है, इन विच सिटी टैक्नोलॉजी फर्म ओरेकल, ओरेकल एक टैक्नोलॉजी फर्म है, इन्होंने की करया अनवील की इट्स सैकेंड डाटा सेंटर इन इंडिया। इंडिया दे विच ये एक पहले डाटा सेंटर ओपन कर चुके हैं, हुण इन्होंने दूसरा डाटा सेंटर ओपन किया। दूसरा कित्थे ओपन किया? हैदराबाद दे विच। अपना आंसर होएगा हैदराबाद दे विच। ओरेकल द्वारा एक डाटा सेंटर ओपन किया गया, टैक्नोलॉजी फर्म है, कित्थे ओपन किया गया? हैदराबाद दे विच। पहला डाटा सेंटर इन्होंने ओपन किया सी मुंबई दे विच। पहला भी अपने लिए इंपोर्टेंट बनेगा, पहला डाटा सेंटर कित्थे ओपन किया गया सी? मुंबई दे विच। अच्छा, मुंबई और हैदराबाद पहले भी एक सिंगल न्यूज़ दे विच सीगे। किस न्यूज़ दे विच? यूनाइटेड नेशन क्रिएटिव सिटीज़ नैटवर्क की लिस्ट दे विच दोनों नूं शामिल किया गया सी। मुंबई नूं इन द फील्ड ऑफ फिल्म और हैदराबाद नूं इन द फील्ड ऑफ गैस्ट्रोनोमी। काला घोड़ा फैसटिवल ऑर्गेनाइज किया गया सी मुंबई दे विच। हैदराबाद की गल करिए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैडिटेशन सेंटर ओपन किया गया सी। कोलकाता हुगली रिवर के अंडर, हुगली रिवर के अंडर एक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, अंडर वाटर मैट्रो प्रोजेक्ट कोलकाता दे विच। अहमदाबाद दे विच काइट फैसटिवल, इंटरनेशनल काइट फैसटिवल हैल्ड किया गया सी गुजरात अहमदाबाद दे विच। दिल्ली रिलेटेड एक न्यूज़ डिस्कस कर लेने। दिल्ली बिल्कुल रिसेंटली न्यूज़ दे विच सीगा, किस दे लई कि यह दिल्ली अपने तरीके का पहला एक प्लाज्मा बैंक ओपन करन जा रही है। थोड़ा डिस्कस कर लेने इस न्यूज़ के रिलेटेड की चीज़ है प्लाज्मा बैंक। अगर आप ब्लड की गल करते हैं, ब्लड के विच एक पिगमेंट होंदा प्लाज्मा। इस रिलेटेड आप एक न्यूज़ पहले डिस्कस की थी कि प्लाज्मा थैरेपी शुरू की गई सी। प्लाज्मा थैरेपी के नाल कोविड-19 पेशेंट्स नूं ट्रीट शुरू किया गया सी। बेसिकली अगर आप गल करिए यूपी दे विच समथिंग एक यूनीवर्सिटी सीगी किंग जॉर्ज यूनीवर्सिटी, उस द्वारा इसनूं सक्सैसफुली टेस्ट किया गया सी इंडिया दे विच, ते उस तो बाद इसनूं शुरू किया गया सी। तो इसे दे लई इस इनीशिएटिव के अंडर प्लाज्मा बैंक दिल्ली दे विच एक तरीके का पहला प्लाज्मा बैंक लॉन्च किया जा रहा है दिल्ली दे विच। ठीक है जी, शुरू किया जा रहा है दिल्ली दे विच, याद रखना। नेक्स्ट है, हु इज़ द इंडियन एम्पायर दैट हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स। अगर आप गल करिए ICC दे एम्पायर्स दे पैनल दे विच, ICC दे एम्पायर्स दे पैनल दे विच एक परसन एक इंडियन एम्पायर नूं ऐड किया गया। उन्हां दा नाम की है? उन्हां दा नाम है नितिन मैनन। उन्हां दा नाम की है? नितिन मैनन। ठीक है जी। इस तो इलावा ICC का हैडकुआटर कित्थे है? दुबई दे विच। चेयरमैन कौन ने? शशांक मनोहर। CEO ने शशांक मनोहर चेयरमैन ने और ICC के CEO ने मनु साहने ICC के CEO ने। इस तो इलावा रतन लाल कौन ने? रतन लाल को अवार्ड दिता गया सी, एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट ने जिन्होंने अवार्ड दिता गया सी वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2020 रतन लाल जी ने दिता गया सी। अच्छा, इस तो इलावा अंगद सिंह राणा और वैभव भार्गव, ये दो नाम अपना एक कंपटीशन हैल्ड किया गया सी न्यूजीलैंड शेफ कंपटीशन, जिसनों वर्चुअल तौर पर हैल्ड किया गया, इंडिया दे विच हैल्ड किया गया और इन्हां दो परसनस नूं अवार्ड दिता गया सी। इन्हां दे अंदर बेसिकली अगर आप गल करिए कंपटीशन का नाम सीगा क्यूलिनरी कप, न्यूजीलैंड शेफ क्यूलिनरी कप, जिसनों अंगद सिंह राणा मटन सी फूड कैटेगरी दे विच और वैभव भार्गव नूं मटन कैटेगरी दे विच अवार्ड दिता गया सी। अनमोल नारंग USA दी मिलिट्री अकैडमी तो ग्रैजुएट करने वाले फर्स्ट सिख बने सी।
USA ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਸਟ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਸੀ ਵੈਭਵ ਭਾਰਗਵ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟਡ ਟਰਾਈਬਸ ਇੰਡੀਆ ਸਟੋਰ ਔਨ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਪੋਰਟਲ ਜੈਮ ਪੋਰਟਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੈਮ ਪੋਰਟਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੈਮ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਪਰਸਨਸ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੈਮ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਈਬਸ ਇੰਡੀਆ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਦੁਆਰਾ। ਟਰਾਈਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੁੰਤੀ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਰਾਈਬਸ ਇਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਟਰਾਈਫੈਡ ਗੋਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ। ਟਰਾਈਫੈਡ ਗੋਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਇਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੀ ਵੋਕਲ ਫॉर ਗਲੋਬਲ, ਬੀ ਵੋਕਲ ਫॉर ਲੋਕਲ ਇਸ ਦਾ ਫੋਕਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਥੀਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਈਫੈਡ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਵੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਈਫੈਡ ਬਾਰੇ। ਟਰਾਈਫੈਡ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫॉर्म ਹੈ ਟਰਾਈਬਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਟਰਾਈਬਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟਰਾਈਫੈਡ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫॉर्म ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਮੀਨਾ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਮੀਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸ਼ਿਵਦਾਸ ਮੀਨਾ। ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਵਦਾਸ ਮੀਨਾ ਕੌਣ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਵਦਾਸ ਮੀਨਾ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਇੱਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਸ਼ਿਵਦਾਸ ਮੀਨਾ ਜੀ ਦੀ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।